This is audio revision of essay 250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statement. Now, this essay deals with auditor's responsibility to consider laws and regulations in performing audit of financial statement. नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? नॉन कंप्लायंस का मतलब है या तो एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन. नॉन कंप्लायंस मीन्स एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय एंटिटी, या तो जानबूझ के या फिर अनजाने में, इधर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. क्या हो गया? एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन इधर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, which are contrary to prevailing laws or regulations. It does not include personal misconduct unrelated to business activities of entity by management or TCWG or employees. Nor other responsibility of management for compliance with laws and regulations. Ensure that first point is ensure that entities' operations are conducted as per provisions of laws and regulations. Second point is, for this, entity may implement following policies and procedures that assist in prevention and detection of non-compliance with laws and regulations. अब इसका फर्स्ट पॉइंट है monitoring legal requirements and ensuring that operating procedures are designed to meet these requirements. Second is instituting and operating appropriate system of internal control. Instituting मतलब इंट्रोड्यूस करना या फिर establish करना. तो instituting and operating appropriate system of internal control, या तो ऐसा कुछ नया internal control policy, internal control system establish कर रहे हैं या फिर लेकर आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Third is developing, publicizing and following code of conduct. Fourth is ensuring employees are properly trained and understand code of conduct. Fifth is monitoring compliance with code of conduct. Sixth is engaging legal advisors to assist in monitoring legal requirements. And seventh is maintaining register of significant laws and regulations and record of complaints. तब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो गया? पहला हो गया मॉनिटर करो लीगल रिक्वायरमेंट्स. सेकेंड हो गया एस्टैब्लिश सच इंस्टीट्यूटिंग, वर्ड इज इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. फिर हो गया डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट. फिर हो गया इंश्योरिंग एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली ट्रेन एंड अंडरस्टैंड कोड ऑफ कंडक्ट. फिर हो गया मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट. फिर हो गया इंगेजिंग लीगल एडवाइजर्स टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग. एंड लास्ट इज मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन. इसको स्टेप्स में ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले तुम लोग को ये देखना होगा कि लीगल रिक्वायरमेंट्स ऐसा डिज़ाइन हुए हैं या नहीं कि वो इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते. तो पहला हो गया कि हम लोग को रूल चेक करना है, तो हो गया मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. सेकेंड पॉइंट में हो गया कि इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं वो देखना है, तो इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर थर्ड में क्या हो गया? अब पहला में मॉनिटर कर लिए हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर हम लोग इंस्टीट्यूट भी कर लिए. अब हम लोग डेवलप करेंगे, तो डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट. फिर है इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपरली ट्रेंड. फिर एम्प्लॉयज़ को क्योंकि अब आगे लेकर जाना है. फिर मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट. फिर engaging legal advisors to assist in monitoring legal requirements. And last is maintaining register of significant laws and regulations and record of complaints. Next topic is responsibility of auditor in relation to compliance with laws and regulations by the entity. इसमें है inherent limitations on auditor's ability. अब ऑडिटर्स की एबिलिटी पे क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस आ सकता है, ये हो गया. इन केस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर ग्रेटर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. फर्स्ट इज देयर आर मेनी लॉज एंड रेगुलेशंस दैट डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट कैप्चर्ड बाय एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम. सेकेंड हो गया non-compliance may involve conduct designed to conceal it
such as collision, forgery, or intentional misrepresentations made to the auditor. Last point is whether an act constitutes non-compliance is ultimately a matter for legal determination by court of law. ठीक है, अब क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन आ गया। अब इसका इनहेरेंट लिमिटेशन क्या क्या हुआ फिर से बताने। फर्स्ट हो गया कि बहुत सारा लॉ एंड रेगुलेशन डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो कैप्चर भी नहीं हो पाता है एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में। सेकेंड हो गया बहुत सारा नॉन कंप्लायंस कर देता है कि दिस नॉन कंप्लायंस लॉ और रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस करता है इन ऑर्डर टू कंसील इट, या फिर कॉल्यूशन के लिए या फिर फॉर्जरी के लिए। और लास्ट में कि कोई एक्ट कंस्टिट्यूट करता है नॉन कंप्लायंस का इज अल्टीमेटली अ मैटर फॉर लीगल डिटर्मिनेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कि ये सच में नॉन कंप्लायंस है या नहीं, ये कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। Responsibilities relating to compliance with those laws and regulations that have a direct effect on determination of material amounts and disclosures in financial statement. Auditor's responsibility हो गया responsibilities relating to compliance with those laws and regulations that have a direct effect on determination of material amounts and disclosures in financial statement. As part of obtaining understanding of entity and its environment, auditor shall obtain a general understanding of legal and regulatory framework applicable to entity and industry in which entity operates. Second is how the entity is complying with that framework. First हो गया legal and regulatory framework applicable to entity and industry in which entity operates. Second हो गया how the entity is complying with that framework. फर्स्ट हो गया लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल, एंड सेकेंड इज हाउ दैट एंटिटी इज कंप्लाइंग विद द फ्रेमवर्क। फिर आ गया लास्ट पॉइंट, ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विद दोज लॉज एंड रेगुलेशंस दैट हैव डायरेक्ट एंड मटीरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू अदर लॉज। पहला था डायरेक्ट इफेक्ट वाला, ये वाला है अदर लॉज एंड रेगुलेशंस दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट देयर कंप्लायंस इज फंडामेंटल टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इसमें हो गया अच्छा, इसका एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all laws and regulations. ठीक है, not responsible for preventing and cannot be expected to detect non-compliance। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑडिटर को सारी laws and regulations का तो आइडिया नहीं होता है ना, वो बिजनेस लॉज पढ़ते हैं, उनको सारे तरह के लॉज का तो नॉलेज नहीं है, इसलिए। Second point is for other laws, auditor's responsibility is limited to identify non-compliance that may have a material effect on financial statement. Second point हो गया for other laws, auditor's responsibility is limited to identify non-compliance that may have a material effect on financial statement. Third point is auditor shall perform following audit procedures to identify non-compliance that have a material effect on financial statement. इसका हो गया point inquiring of management or TCWG whether entity is in compliance with laws or regulation. Second is inspecting correspondence with regulatory authorities. क्या क्या point हो गया? First हो गया inquiring of management or TCWG whether entity is in compliance with laws and regulation, और दूसरा इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विथ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। फर्स्ट हो गया इंक्वायरिंग, सेकेंड हो गया इंस्पेक्टिंग। नाउ ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट टू पॉसिबिलिटी दैट other audit procedures applied may bring instances of non-compliance to auditor's attention। ठीक है
ऑडिट के टाइम ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए कि कोई चांसेस है कि नॉन कंप्लायंस मिल जाए, हाँ, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स यूज़ करने की वजह से। लास्ट इज auditor shall obtain written representation from management or TCWG that all known instances of non-compliance have been disclosed to auditor. Last topic is indications of non-compliance with laws and regulations. When auditor has information about following matters, it may be an indication of non-compliance with laws and regulations. अगर ऑडिटर के पास इस तरह का इंफॉर्मेशन है तो देयर आर चांसेस, देयर आर इंडिकेशंस कि नॉन कंप्लायंस हो सकता है लॉज एंड रेगुलेशन में। तो फर्स्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पेमेंट ऑफ पेनाल्टीज। पहला पॉइंट हो गया कि इन्वेस्टिगेशन अगर हुआ है कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी से और वो पेनाल्टी पे किया है तो देयर आर चांसेस कि लॉ और रेगुलेशन में नॉन कंप्लायंस हुआ हो। सेकेंड इज पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज टू कंसल्टेंट्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, ऐसे सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं जो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो ब्राइब हो सकता है और इसीलिए उसका कोई ब्राइब हो सकता है या फिर कोई हाँ ब्राइब हो सकता है कि अगर नॉन कंप्लायंस किया है तो अब उसको ट्रैक पे लाने के लिए हो सकता है वो ब्राइब किया हो। थर्ड पॉइंट है सेल्स कमीशन और एजेंट फीस दैट अपीयर एक्सेसिव इन रिलेशन टू दोज ऑर्डिनरली पेड बाय द एंटिटी। सेल्स कमीशन या फिर एजेंट फीस ज़्यादा दे रहे हैं जो ऑर्डिनरी पेमेंट होता है उससे। फोर्थ पॉइंट इज परचेजिंग एट प्राइसेस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो मार्केट प्राइस। ऊपर में था सेल्स कमीशन और एजेंट फीस, इसमें है परचेजिंग और परचेजिंग एट प्राइसेस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो। देन हो गया अनयूजुअल पेमेंट टुवर्ड्स लीगल एंड रिटेनरशिप फीस। फिर हो गया अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन्स। ठीक है, अनयूजुअल पेमेंट अगर हो रहा है लीगल और रिटेनरशिप फीस के लिए, अगर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है विद कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन्स। फिर पेमेंट्स फॉर गुड्स और सर्विसेज मेड अदर दैन टू द कंट्री फ्रॉम विच गुड्स और सर्विसेज ओरिजिनेटेड। ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज मेड अदर दैन टू द कंट्री फ्रॉम विच गुड्स और सर्विसेज ओरिजिनेटेड। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ information system which fails by design or accident to provide sufficient evidence. Existence of information system which fails by design or accident to provide sufficient evidence. Last point is adverse media comment. अगर मीडिया में कुछ negative comment आया है तो that is also a chance of then there is also a chance of non-compliance. Now, second last topic is audit procedures to be followed when non-compliance is identified or suspected. अब अगर मेरे को पता चल गया है कि नॉन कंप्लायंस है या फिर मेरे को शक है कि नॉन कंप्लायंस है तो फिर कैसा ऑडिट प्रोसीजर्स यूज़ करना चाहिए। If auditor has information about non-compliance, he shall obtain understanding of nature of act and circumstances in which it has occurred and further information to evaluate the possible effects on financial statement. पहला हो गया understanding of nature of act and circumstances in which it has occurred and further information to evaluate the possible effect on financial statement. ठीक है, फर्स्ट हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टांसिस इन विच इट हैज़ अकर्ड एंड फर्दर इंफॉर्मेशन टू इवेलुएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Second point is if auditor suspects non-compliance, he shall discuss the matter with management. If they do not provide sufficient information and effect of non-compliance may be material to financial statement, then auditor shall consider to legal advice. पहला हो गया कि उसको ऑडिटर सस्पेक्ट
किए हैं नॉन कंप्लायंस, तो पहले मैटर को डिस्कस करो मैनेजमेंट से। अगर वो कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो फिर लीगल एडवाइस लो। लास्ट पॉइंट, if sufficient information about suspected non-compliance cannot be obtained, auditor shall evaluate effect on auditor's opinion. अगर sufficient information नहीं मिलता है about suspected non-compliance तो ऑडिटर को अपना ओपिनियन को इवेलुएट करना होगा कि उस मतलब इस नॉन कंप्लायंस की वजह से उसके ओपिनियन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। लास्ट टॉपिक, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर for non-compliance of laws and regulation in audit of financial statement, reporting of identified or suspected non-compliance. Topic is reporting non-compliance to TCWG. Auditor shall communicate TCWG with matters involving non-compliance that came to auditor's attention during the audit other than when the matter are clearly inconsequential. ठीक है, जो भी ऐसे मैटर्स नॉन कंप्लायंस के जो ऑडिटर के अटेंशन में आए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, उसको हमको TCWG के बताना है। उस सारे टॉपिक्स के अलावा मतलब ऐसे टॉपिक्स बताने जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस हो, नॉट दोज मैटर्स दैट आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। सेकेंड पॉइंट इज इफ नॉन कंप्लायंस रेफर्ड अबव इज इंटेंशनल एंड मटेरियल, auditor shall communicate the matter to TCWG as soon as practicable. Third point is if auditor suspects that management or TCWG are involved in non-compliance, he shall communicate the matter to next higher level of authority in entity such as audit committee or supervisory board. Where no such authority exists, auditor shall consider to obtain legal advice. If auditor suspects that management और TCWG are involved, अगर ऑडिटर को ऐसा डाउट होता है कि मैनेजमेंट और TCWG नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व है, देन ही शुड कम्युनिकेट इट टू द जो भी नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी है एंटिटी में उनको, जैसे ऑडिट कमेटी या फिर सुपरवाइजरी बोर्ड। और अगर कुछ भी नहीं है देन ऑब्टेन लीगल एडवाइस। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी का सब टॉपिक है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सब टॉपिक है रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स नॉन कंप्लायंस हैज मटीरियल इफेक्ट बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ही शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, इफ ही कंक्लूड्स नॉन कंप्लायंस और मीन्स OR इंग्लिश वाला, इफ auditor concludes non-compliance is there and it has material if auditor concludes non-compliance has material effect but not reflected in financial statement, he shall express qualified or adverse opinion. अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि नॉन कंप्लायंस है और उसमें मटेरियल इफेक्ट है बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उसको क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देना होगा। एंड इफ ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड बाय मैनेजमेंट, प्रिक्लूडेड मतलब प्रिवेंटेड, तो अगर ऑडिटर इज प्रिवेंटेड बाय मैनेजमेंट, लेकिन वर्ड याद रखना है प्रिक्लूडेड, इफ ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड बाय मैनेजमेंट और TCWG फ्रॉम ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस टू इवैल्यूएट वेदर नॉन कंप्लायंस हैज अकर्ड, he shall express qualified or disclaimer of opinion on the basis of limitation of a scope. If auditor is precluded by management or TCWG from obtaining audit evidence, अगर वो ले ही नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो qualified और फिर disclaimer of opinion ही ना देगा on the basis of limitation of scope. Last subtopic is reporting non-compliance to regulatory and enforcement authorities. This is auditor shall determine whether he has responsibility to report non-compliance to parties outside the entity. Auditor shall determine whether he has responsibility to report non-compliance to parties outside the entity. Management TCWG को रिपोर्ट करने के अलावा क्या किसी थर्ड पार्टी को भी बताना है, रिपोर्ट करना है, वो इसमें देखना होगा। Thank you so much and here we end
SA 250. If you like it, please like, subscribe and comment.